में उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। तो हम लोग तो शोला हैं, जितना आप हवा मारोगे ना, जितना लात मारोगे, हम उतना और भड़केंगे, है ना। वो भगवान का चटक रूप है हमारे अंदर। ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੈਰ कुदरती है। इन्फ्लुएंस क्या है, देखो आप मेरे साथ रहोगे तो आप हिजड़ा तो नहीं बन जाओगे, है ना। कोई इंसान चिड़ियाघर में काम करता है 40 साल, और 40 साल रिटायर होने के बाद वो बंदर बन के तो नहीं निकलता, है ना। मैडम जीन गुडॉल है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दुनिया की बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 50 साल गोरिल्लाज पे काम किया, ठीक है ना। तो वो 50 साल जब वो कॉन्गो के जंगलों से बाहर निकली तो वो गोरिल्ला बन के तो नहीं निकली। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਵਲ ਰੰਧੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦ ਕਵਲ ਰੰਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखो LGBTIQ+ कम्युनिटी बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮੁਦਾਇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾ। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ
वेद का एक मंत्र है विकृतिम एवं प्रकृतिम, जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वर्ड सीम्स अननैचुरल इज़ ऑल्सो नैचुरल। सो वेद ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਖੋਜਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਜਾ ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਖੁਸਰਾ, ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਔਰ ਸਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨਾਤਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੀ, ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੇਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਧਾਈ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ। CDTI ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ हैं, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ हैं डिपार्टमेंट्स में, कई डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया भी है। सो बिकॉज मैं डबल मास्टर की है, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर इन सोशल वर्क, तो मैं BA ऑनर्स भी हिस्टरी च की है, नाल डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो पढ़ाई दे नाल मैं हमेशा मेरा बड़ा ही गूढ़ रिश्ता रहा। तो मतलब हजे तक मैं लगी हाँ ਜਿਹੜਾ अपना समाज ਨੂੰ अवेयर करन दी। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ एक्सेप्ट करे ना करे, साडा वजूद हमेशा रहेगा ही ना। सो जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होती है। इसी प्रकार मर्द और औरत के साथ साथ तृतीय प्रकृति है, जो तीसरी प्रकृति, थर्ड जेंडर भी रहता है, उसके बिना मर्द और औरत जो है कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨੰਜੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵਿਥਿਆ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ 2012 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ 2012 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
ਨਾਲਸਾ ਵਰਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ UGC ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, 3rd ਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 2016 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਸਿਕਿਓਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਏਲੀਅਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਾਈਟ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਅਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫੀਮੇਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਟਾਇਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਮੇਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਫਰੀ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭੇਜੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2018 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ MA, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, DUI ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਝਾ ਸੀਗੇ ਡੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 7-8 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ, 4-5 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰੀ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ 'ਚ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰੋਚਕ ਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਝਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡੀਨ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ 3-4 ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। कहते हैं आपने नोटिस किया ये मीटिंग जो है हर जो 4 मीटिंग हुई हैं ये बुधवार को ही हुई हैं, है ना। चारों मीटिंग बुधवार को ही हैं और बुध जो है वो किन्नरों से संबंधित है। हाँ, बुध का जो संबंध है वो किन्नरों के साथ है, क्योंकि बुध का जो की कहानी है, चंद्रमा जो थे उनकी पत्नी तो नहीं थी, मैं कहूँ गुरु पत्नी थी जिनके साथ उनका आकर्षण होता तारा। चंद्रमा और तारा का संबंध होता है, आपस में वो मिलते हैं, उनसे पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बुध रखा जाता है। और बुध जब बड़े होते तो वो उनका आकर्षण होता है ईला के साथ। ईला जो थी पहले तो वो पुरुष थी, बाद में वो फीमेल हो जाती हैं, ट्रांसजेंडर हो जाती हैं। तो उनके साथ मिलन से उनका जो बच्चे पैदा होते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। हाँ, जितने भी पांडव हुए, कौरव हो गए, कृष्ण हो गए, कंस हो गए, और भी जितने भी लोग हैं जो चंद्रवंशी हैं उनका संबंध बुध से है। तो सो ये जो उन्होंने सारी कहानी दसी भी इदा है ना भी बहुत महत्व। और ਜਿਹੜੇ ਜਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। तो बुधवार को लोग दान करते, कहते ये देखो बुधवार को ये सब हो रहा है, इसका मतलब इनका काम होना ही होना है। अच्छा। है ना, कहते हैं ये नियति है, परमात्मा ने फिक्स किया है, इन्होंने काम तो होना ही होना है। और मैनू मतलब आई वॉज वेरी लकी कि साडा काम कभी भी नहीं रुकया। है ना, दुनिया ने सारे मत्थे रगड़ ले, मेल फीमेल ने अपनी फीस वास्ते या होर जिन्ने भी स्ट्रगल यूनिवर्सिटी तुसीं देखिया किन्ने सारे स्ट्रगल चलते हैं, बट साडा स्ट्रगल बेशक थोड़ा तकलीफदायक सी, लेकिन कभी भी किसी ने ना जो सिंडिकेट सैनेट की मीटिंग होंदी सीगी कभी भी साडे ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी ने। सो साडा फ्री एजुकेशन हो गया सीगा, मतलब फ्री शिक्षा हो गई। तो उस तो बाद फिर हॉस्टल की वारी आई 2021-22 ਵਿੱਚ कोविड तो बाद। तो हाई कोर्ट ਵਿੱਚ फिर सानू मामला ले जाना पिया, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिता सी भी साडे कोल जगह नहीं है, ना ही फंड्स ने, कोई प्रोविज़न नहीं है साडे कोल, मेल फीमेल दे हॉस्टल है, आपां कित्थे रखीए इन्हां नूं। सो हाई कोर्ट 'ਚ ਜਦੋਂ मैटर गया तो हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी ਨੂੰ समन किया, बुलाया। तो उन्होंने पूछा भी तुहाडी पहले तो गल है कि तुहाडी ट्रांसजेंडर पॉलिसी कित्थे है ना। सिर्फ हॉस्टल का मामला नहीं हैगा, बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े ट्रांसजेंडर नाल संबंधित ने। तो फिर वापस उन्होंने भेजा तो पॉलिसी बनाने नूं कहा। तो पॉलिसी बना के फिर जो नैक्सट उन्होंने हीयरिंग हुई तो पॉलिसी बना के लेके गए काफ़ी सारी चीज़ों के उपर। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सैल का भी सीगा भी कोई बच्चा पढ़न आता तो उहदे नाल जे बुलिंग हैरैसमेंट होंदी है तो फिर किहड़ी कमेटी तुसीं बनाई है, उस कमेटी दे सारा उन्होंने जिहड़े भी प्रोविज़न सीगे उन्होंने कौन कौन मैंबर ने, उहदे विच किन्ने ट्रांसजेंडर मैंबर ने, सारा कुछ उन्होंने बना के भेजा। हॉस्टल का है, होर भी मुद्दे होंदे। तो हाई कोर्ट ने, पंजाब ने हरियाणा हाई कोर्ट ने साडा हॉस्टल तो दिता ही, तो उन्होंने कहा भी सिर्फ हॉस्टल नहीं देना, इन्होंने फ्री हॉस्टल देना है। तो सानू हुण फ्री हॉस्टल हैगा उत्थे, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन सैल हैगा।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ DUI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 2017 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 26 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, 26 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਸਭ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ। ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ SDM ਜਾਂ DM ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ DM ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ 377 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 21, ਆਰਟੀਕਲ 15, 14, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ, ਬੜੀ ਅਦਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ 2012-13 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਟ 2017 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਧੈर्य ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। बट कुल मिला के कोई एनर्जी है, कोई ना कोई तो है। कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल। हमें जन्म का नहीं पता, हमें मरना के नहीं पता, हम नहीं जानते कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन भारतीय फिलॉसफी में तो इस जगत का के बारे में भी है और उस जगत के बारे में भी। यह लोग उह लोग है ना, दोनों लोग। सो LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 15-20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਜੁਰਾਹੋ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਾਮਸੂਤਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ, ਜੈਂਡਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ, ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੀਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਸ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ, ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਂਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੇਲ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਵਨ। ਅਰਾਵਨ ਉਲੂਪੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਲੂਪੀ ਇੱਕ ਨਾਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਸੀਗਾ
ਪੰਜੋਂ ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਅਗਿਆਤਵਾਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਵੰਸ਼, ਹਿਮਾਲय ਵਿੱਚ ਨਾਗਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਵੰਸ਼ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ ਉਲੂਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਧਰਵ ਵਿਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਵਨ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਇਰਾਵਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ बाद ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ कि अगर आप युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आपको एक उनके कुल देवी जो है उसके सामने एक मानव बलि को चढ़ाना पड़ेगा, मानव बलि देनी पड़ेगी। तो कोई भी युवा जो था वो माना नहीं, मतलब जो भी यंग लड़के से वो मनने नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इरावन सीगा या अरावन जिन्होंने कहते, वो मान गया कि मैं अपनी बलि दूँगा, लेकिन अपनी बलि देने तो पहले मैं ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਿਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਇਰਾਵਨ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਰਾਵਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਛ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾਮ, ਕੋਵਗਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ 9-10 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਰਾਵਣ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਥ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ, ਵੈਸਟ, ਈਸਟ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ LGBT ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, वेस्ट कंट्रीज़ तो शुरू है, बट हमारे इंडिया में तो हज़ारों सालों से रहा है ना, चाहे वो मुग़ल दरबारों में हुआ, चाहे वो देवदासी प्रथा है, भक्ति आंदोलन है, सूफिज़म है, इसमें बढ़ चढ़ के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या जिनकी सेक्सुअलिटी या जेंडर आइडेंटिटी का थोड़ा उनको लगता था कि कन्फ्यूज़न है, वो कम्युनिटी इस चीज़ों से जुड़ी रही। और भक्ति आंदोलन जो है वो किन्नर लोगों के द्वारा भी शुरू हुई है, और भक्ति क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। ये प्रकृति जो है ये स्त्री है, और प्रकृति में हम भी आते हैं, जितने पेड़ पौधे हैं सब प्रकृति जो है स्त्री है। इसलिए वृंदावन में कोई पुरुष नहीं जाता, वृंदावन में सब सखी भाव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, और वहाँ चाहे कोई भी हो वो अपने आप को सखी मानता है। वहाँ पर एक बहुत बड़े महान पंडित रहे गोस्वामी वल्लभाचार्य जी। जब मीरा जी चित्तौड़गढ़ से जब वृंदावन आई तो उन्होंने मिलने के लिए आग्रह किया कि मुझे मिलना आपसे। तो वल्लभाचार्य जी ने मना कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा जी ने जवाब भेजा, अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, वृंदावन में तो सब सखियाँ हैं, वहाँ तो एक ही बांके बिहारी जो है कृष्ण है वो ही पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष, और हम तो सखियाँ सब। तो वल्लभाचार्य जी भागे बाहर आए, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, हम तो सब सखियाँ हैं।
और इसका ये भी है कि हम आत्मा हैं, आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, ये जितने भी लोग हैं सब आत्मा हैं। पुरुष एक ही है, परमात्मा है ना। हम अपनी आत्मा को स्त्री भाव में संबोधित करते हैं, मेरी आत्मा भूखी है, मेरी आत्मा प्यासी है, मेरी आत्मा मर गई है। चाहे आप बोलो, चाहे एक औरत बोले, चाहे एक हिजड़ा बोले, है ना, सब लोग एक जैसे ही बोलेंगे, क्योंकि वो आत्मा स्त्री हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ना है, वाणी को पढ़ते तब भी आत्मा भाव से पढ़ते हैं, है ना, आत्मा से पढ़ते हैं, ये शरीर से नहीं पढ़ते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होगा तब वाणी कंप्लीट होती, तब हमारा मिलन होता है, तब आंसू गिरते हैं, है ना। जब तक वो मिलन नहीं होगा तब तो आपका ध्यान इधर उधर रहेगा दुनिया में, कि अब किसी ने चढ़ाया है, किसी ने नहीं चढ़ाया पैसे, ये फलाना चीज़, वो जितनी नफ़रतें हैं ये तभी होता है क्योंकि हम मन से नहीं करते हैं। बिल्कुल। हमारा मन जो आत्मा है ये परमात्मा के साथ लगा ही नहीं है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ, शिव जी ने कहा कि मैं भी महाराष्ट्र से शामिल होना है। तो पार्वती जी कहते कि वो हंसने लगते, वो कहते कि आप तो पुरुष हो, तो वो कहते कि आपको तो स्त्री बनना पड़ेगा। तो भगवान शिव जो है स्त्री बन जाते हैं। जहाँ स्त्री बनते हैं गोपेश्वर उत्तराखंड में है। जब आप बद्रीनाथ जाते हो या हेमकुंड साहब जाते हो तो एक साइड गोपेश्वर भी आता है। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी का मंदिर है, वो वहाँ पर उनको स्त्री रूप में पूजा जाता है भगवान शिव को। ऐसे वृंदावन में भी गोपीनाथ का मंदिर है। तो ये जो हमारी सनातन परंपराएं हैं हिंदुइज़्म में, भक्ति आंदोलन, ऐसे सूफीज़म में भी हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते नीमे रुसिया यार मनाना पावे। हाँ जी, मेरा यही सवाल ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੇ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਟਰੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, बट उन्होंने सारे जड़ी अपनी कौल हैं, कवालियाँ हैं, वो सारे एक लड़की की तरह लिखे हैं। छाप तिलक सब छीनो मों से नैना मिला के, बली बली जाऊँ मैं अपने पिया के। तो वो वहाँ पर तो वो सुहागन बनने के लिए भी कहते हैं कि मैं सुहागन बन जाऊँ, है ना, सकल बन फूल रही। तो इतना सारा वो हीरा मंडी का जो गाना है उसमें वो अमीर खुसरो साहब ने लिखा। आप जितनी कवालियाँ उनको सुनोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा नहीं किसी आदमी ने लिखा है, उनको लगेगा आप ये किसी औरत ने लिखा। अब जब फागुन होता है तो उनके जो उस्ताद थे निजामुद्दीन औलिया, वो किसी कारण से उदास थे, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको अपने उस्ताद को मनाने के लिए वो जब अमीर खुसरो बड़े बेचैन रहे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें जो पीले कपड़े पहन के मतलब फूल लेके जा रहे हैं, तो वो अपने पीले कपड़े पहन के फूलों को लेकर अपने उस्ताद के पास भी आता है। तो आप जब निजामुद्दीन जी जो उनके दरगाह पे जाओगे तो फागुन में तो फाग खेला जाता है, फूलों की होली है। फूल पंचमी के दिन, है ना, बसंत पंचमी, उनको फूलों से वहाँ पर खेला जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में ही, चाहे होमोसेक्सुअलिटी है चाहे वो ट्रांसजेंडर किन्नर, दोनों साथ में रहें। दरबारों में भी, मुग़ल दरबारों, अलाउद्दीन खिलजी का जो सिपह सलार था मलिक काफूर, वो एक हिजड़ा था, उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को उससे बहुत प्रेम था, प्यार था, तो दोनों साथ में। और वो हिजड़ा जो है दक्षिण फतेह करके जब लाया, तो वहाँ से जब वो फतेह करके आया तो हीरा भी लेके आया, कोहिनूर हीरा। आप सोचिए वो कोहिनूर हीरा जिस राजा के पास भी गया उसके साथ एक कल्ट था, मतलब एक बदसुगनी या कुछ में अपशगुन जुड़ गया था। भी जिदे कोल भी गया हो उदा सर्वनाश हो गया। चाहे वो खिलजी वंश है, चाहे स्लेव डायनेस्टी है, चाहे मुग़ल दरबार है। 1857 से मुग़ल दरबार भी ख़त्म हो गए, मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। फिर वो अंग्रेजा जान तो पहले अपने अफ़गाना को सीगी, नादिर शाह कोल अफ़गान ईरान कोल सीगा। तो उसके बाद फिर महाराजा रणजीत सिंह कोल आया। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद फिर उन्होंने ਜਿਹੜੇ बेटे ਸੀ महाराजा दलीप सिंह, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। जो 10 साल ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 1947 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1947 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਟ ਸੀਗਾ, ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏਗਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਲਗਾਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿਜੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਲਤੁਤਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਰਚਸਵ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਹਿਜੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਖਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋਇਲ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਇਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿਜੜੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੋ ਕਿ ਗੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਕੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਲੋਕ, ਔਰ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਜਟਾ ਦੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਰਾਕਸ਼ਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮੂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗੀਰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਰਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਗੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ। ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਘੂਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨੇ भी और भी आकाशवाणी होती है कि दोनों रानियां आपस में संभोग करें, एक स्त्री बन जाए, एक अपने आप को पुरुष माने, तो दोनों संभोग करती हैं, उनसे गर्भ धारण होता है। भग मतलब योनि, दोनों योनियों के घर्षण से जो संतान उत्पन्न होती हैं वो आगे भागीरथ कहलाता है ना। तो भगिनी मतलब भगिनी 2 औरत और उनकी, हाँ, फिर आगे राम तो बाद से पैदा होंगे, फिर ये राजा सगर के आगे चलते रघुकुल सारा ये सब वंश चल रहा होता है उनके, इसलिए वो गंगा लेकर उनके पूर्वज जो थे उनकी अस्थियाँ जो थी वैसे ही पड़ी हुई थी
किसी कारण, श्राप के कारण, वो लंबी स्टोरी है। तो वो फिर गंगा आती हैं। जब भागीरथ पैदा होते हैं तो भागीरथ मतलब टेढ़े मेढ़े, मतलब डिसेबल होते हैं। वो एक जगह बैठे रहते हैं, मांस का लोथड़ा जैसे ना, हड्डियाँ उनकी बिल्कुल नाजुक होती हैं, डिसेबल पैदा होते हैं। तो एक बार उनके आगे से अष्टवक्र महान ऋषि होते हैं, जो कि जनक के गुरु भी थे। अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़ा होते हैं। तो वो गुजर रहे होते हैं, तो जो बालक था भागीरथ, वो हंस रहा होता है। तो अष्टवक्र कहते हैं कि अगर तुम मेरे को देख के हंस रहे हो तो तुम अभी भस्म हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मुझे देख के नहीं हंस रहे हो, अपने वैसे ही हंस रहे हो, तो तुम ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक हो जाते हैं और बाद में फिर वही भागीरथी गंगा लेके आते हैं, है ना। तो ये इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, लेस्बियन की भी, गे की भी, और ट्रांसजेंडर की तो है ही है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं। जब मंदराचल पर्वत, जब ये समुद्र मंथन होता है तो वासुकी नाग जो है उसकी वो रस्सी बनाते हैं, मंदराचल पर्वत को रखते हैं और नीचे कश्यप रूप में भगवान आते हैं, उसके ऊपर वो पहाड़ को रखते हैं। जब उसमें से हलाहल ये सब निकलते हैं, 9 रत्न निकलते हैं, उसके बाद अमृत निकलता है, तो उसमें लड़ाई हो जाती देवताओं और राक्षसों में। तो राक्षस उसको लेके भाग जाते हैं, अमृत को लेके। अगर अमृत पी लेते तो अमर हो जाते हैं। तो देवताओं ने भगवान विष्णु के शरण में गए, तो भगवान विष्णु फिर मोहिनी रूप में आए। और मोहिनी रूप को एक चालाक औरत की तरह, बहुत चतुर जो होते हैं, बहुत स्मार्ट, कि किस तरह से किसी की उससे वो अमृत का जो मटका है वो लेना है। और वो चालाकी नहीं कह सकते, स्मार्टनेस, वो अभी भी किन्नरों के बीच में, ऐसा हम लोगों के बीच में, कि किसी से नेक और बधाई, बहुत प्रेम की, ये तो प्यार की लड़ाई है ना। जजमान के साथ जो हमारी लड़ाई है, कोई दुश्मनी नहीं किसी, क्योंकि आप लोग तो जजमान हैं हमारे, है ना। आप लोगों से प्यार से हमें पैसे लेना है, लड़के भी लेने हैं, और ये प्यार की लड़ाई है, कोई दुश्मनी नहीं है कि हमने आपको, क्योंकि आपके घर के तो हम कुत्ते हैं, आपके दरवाजे के, कि जैसा कुत्ता है अपने मालिक की वफादार रहता है, वो चाहता है कि ये शहर और बढ़े, है ना, मेरे को 2 रोटी और मिले। ऐसे हिजड़ा भी है, वो कहेगा इसका परिवार और बढ़े, मुझे रोटी मिले, मुझे नेक मिले, है ना, सदका मिले। तो ऐसे ही ये तो प्रेम की लड़ाई किन्नरों की, कोई ज़बरदस्ती किसी की लड़ाई नहीं होती कि मैं आपको बद्दुआ दे दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सुबह उठते ही अपने जजमान की लिए प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके भगवान कुछ ना कुछ उनके घर में खुशियाँ रहे, तभी तो हमें मिलेगा ना। ऐतिहासिक परंपरा है। हाँ, ये परंपराएं हैं। भगवान विष्णु फिर चालाकी से, बड़ी स्मार्टनेस से उनसे वो मटका ले लेते हैं, है ना, अमृत का। और जब वो मटका ले लेते हैं तो मटका जब ले लेते हैं तो राहु केतु जो थे, वो राक्षस था, वो देवताओं के बीच में बैठ जाता है अमृत पान करने के लिए, अमृत का सेवन करने के लिए। जो बैठा होता है, भगवान को देवताओं का रूप धारण किया होता उसने। जैसे ही भगवान जो है मोहिनी उनको अमृत पान करवाते हैं, अमृत पिलाते हैं, इतने देर उनको पता लग जाता है, तो अपना एकदम से सुदर्शन चक्र जो है वो चला के उसकी गर्दन काट दें, क्योंकि वो अमृत जो है यहाँ तक आ जाता है। इसलिए राहु केतु कभी मरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत का यहाँ तक तो मतलब पी लिया था। तो भगवान जो है ना, मोहिनी रूप जो है, उन्होंने बहुत स्मार्टनेस वाला रूप है उनका, कि ये बहुत चालाकी से चीज़ों को निकाल लेते हैं। और ऐसे ही किन्नरों के अंदर भी वो परंपरा है, वो खून में ऐसा है कि वो स्मार्ट होते हैं। इतने सारे दुख तकलीफ, इतने सारे प्रपंच लोगों के नफ़रतें, इतनी दुनिया भर के छक्के हिजड़े मामू परंतु टेम्पो, ये वो, इनको मारो गोलियों से, इनको उड़ा दो, इनको फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब भी जिंदे हैं, तब भी डरते नहीं किसी से। मार दो, किसने क्या करोगे, मारोगे ना, मारो, हम तो बाल खोल के बैठ जाएंगे, है ना, कर लो जिसने जो करना है। पर किन्नरों का वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक मारोगे तो 100 पैदा होंगे। ये कहता है ना, माता का रक्त बीज नहीं है ना, रक्त पीने वाली, वो कहे एक मारोगे तो 1000 पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही किन्नर भी हैं। किन्नर के बिना तो कभी भी नर और नारी पूर्ण नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के दे दूँ, कभी भी नहीं। एक नर और नारी जो 2 लिंग है ना, तो नपुंसक लिंग भी पैदा होता है। XY क्रोमोसोम जो हैं, आप सोचो, साइंस की बात करती हूँ तो
क्रोमोसोम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, वाई मेल को। इस दुनिया में फीमेल वल्नरेबल हैं, ये सारी दुनिया में फीमेल वल्नरेबल, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा वितकरा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पेट्रियार्की जो मर्द सत्ता की तरफ से। असल में मर्द वल्नरेबल है, क्यों? वो प्रकृति में वल्नरेबल है, नेचर में। जब हम गर्भ में होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम कहाँ से आता है? मेल से वाई आएगा और उससे फीमेल से एक्स आएगा। फीमेल के पास वाई नहीं होता, मेल के पास दोनों हैं, एक्स भी है वाई भी है। तो जो हमारा आप लोग बड़ा बातें करते हैं, ये लोग सनातन परंपरा में फलानी गोत्र है, ये फलाना, एक गोत्र में ये शादी नहीं करते, इनके अंधविश्वास है, ये फलाना। पर आप सोचो, साइंस में आप गोत्र क्यों माना जाता है? क्योंकि आप अपनी जो ब्लड लाइन है, जीन्स तो मानोगे ना कहीं से तो आए हैं जीन। वो मेल से क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके पास वाई है। फीमेल से नहीं गोत्र माना जाता। फीमेल के पास तो एक्स है, एक्स तो आप कहोगे चलो फीमेल से, पर फीमेल तो मेल के पास भी एक्स है, तो आप दोनों में से किसको मानोगे कि किसके गोत्र से पैदा हुआ? मेल के इसलिए माना जाता है क्योंकि वो वाई उसी के पास है, इसीलिए मेल का ही माना जाता है आगे उसका गोत्र। आपका जितने खानदान है पिछला, वो उसी से पिछोकड़ा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਲ ਤੋਂ ਵਾਈ ਕਰਕੇ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੀ। MBA ਕਰਦੇ हैं ਲੋਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ MBA ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਚਲਾਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ MBA, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਆਪਣਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਮਪੈਥੇਟਿਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, है ना। ये फूहड़पन कहते हैं, जैसा देश वैसा वेश, है ना। हम भारत में रहते हैं तो भारत की परंपराओं को निभाते हुए आगे प्राइड होनी चाहिए। प्राइड भी ऐसे कि आप उजूल फजूल चीज़ों को ना प्रमोट करें। हम एक इंसान हैं, हम जैसा हमारा आम इंसान चीज़ें पहनता है उसी तरह की हमें चीज़ों को करना चाहिए। उससे हमारे समाज में भी विकृति नहीं आएगी, समाज के लोग भी नहीं डरेंगे, समाज में एक बहुत सारी गलतफहमियाँ ख़त्म होंगी। बहुत प्यार से बहुत चीज़ों को समझा सकते हैं हम लोग। लेकिन कहीं हम लोग नाटकबाजी करने लग जाएं, हम लोग अलग तरह से कुछ। पर ये देखो, ये तो काम जो है फैशन इंडस्ट्री ने भी बड़ा किया हुआ। मैं कहूँगी कि अगर हम लोग LGBT कम्युनिटी ना होते तो आप इतने रंगीन दुनिया भी ना होती। फैशन इंडस्ट्री जो है वो सारी मोस्टली जो है LGBT कम्युनिटी से चल रही है ना। पूरी दुनिया, रोम फैशन हो गया, पेरिस फैशन वाला हो गया, लंदन फैशन जड़ी है वो है, वहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं कलरफुल, इनके पीछे कौन थे लोग? LGBT कम्युनिटी। लियोनार्डो दा विंसी, जब रेनेसांस होता है पूरा यूरोप में, रेनेसांस होता है ना, मिलान, इटली में, जितना भी रोम में,
जो मोनालिसा जिन्होंने चित्र बनाया पूरी दुनिया में फेमस है, लियोनार्डो दा विंसी, ही वाज नॉट हेट्रोसेक्सुअल, कोई हेट्रोसेक्सुअल नहीं था वो। हाँ, और बहुत सारे इंग्लैंड में भी रेनेसांस जिन्होंने पुनर्जागरण काल में बहुत सारे फिलोसफर, उससे पहले भी ग्रीक फिलोसफर हो गए, प्लूटो हो गया, अपने सुक्राइट हो गए, सुकरात हो गए, सब हेट्रोसेक्सुअल लोग नहीं थे। हम लोग सवाल करना जानते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि वेद में भी ऐसा लिखा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो कि तुम कौन हो, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ। मैंने पहले कहा कि हम आत्माएं हैं, वी आर नॉट बॉडी, बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, सोल नेवर डाई, साउंड नेवर डाई, तभी तो पोल्यूशन होता है। साउंड अभी बोला तो ख़त्म तो नहीं होता ना, ये पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, है ना, तभी तो पोल्यूशन होता है। सोल नेवर डाई, सोल भी नहीं मरती है, वो इसी ब्रह्मांड में रहती, जीव जो है वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन सोल नेवर डाई, है ना। ये हमारी और ये सिर्फ जो होमोसेक्सुअलिटी ये जो है वो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, 1500 स्पीसीज जो हैं उनमें होते हैं। एक मछली है ईल, ब्लू ईल, पैदा हुआ मेल होती हैं, बाद में फीमेल हो जाती हैं, ट्रांजिशन करती हैं। सो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं जो ट्रांजिशन करते हैं। प्रकृति में ये ट्रांजिशन, और जो ट्रांजिशन करता है वो बहुत सुंदर होता है। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ है। इन्फ्लुएंस क्या है, देखो आप मेरे साथ रहोगे तो आप हिजड़ा तो नहीं बन जाओगे, है ना। कोई इंसान चिड़ियाघर में काम करता है 40 साल, और 40 साल रिटायर होने के बाद वो बंदर बन के तो नहीं निकलता है ना। मैडम जीन गुडॉल है, अपने उसमें देखना यूट्यूब में या गूगल में सर्च करना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दुनिया की बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 50 साल गोरिल्लास पे काम किया, ठीक है ना। तो वो 50 साल जब वो कॉन्गो के जंगलों से बाहर निकली तो वो गोरिल्ला बन के तो नहीं निकली, है ना। जानवरों के साथ रह के जानवर तो नहीं हो गई, वो कुत्ता तो नहीं बन गई, बिल्ली तो नहीं बन गई। आप होमोसेक्सुअलिटी के साथ वो लोग वो नफरत करते हैं जिनकी अपनी सेक्सुअलिटी फिसल जा रही है। अच्छा, अब मैं बरसात में जाऊंगी, मुझे पता है ना मैं फिसल जाऊंगी, तभी मैं पकड़ ही जाऊंगी। जिसको पता है मेरी जड़ें मजबूत हैं, मैं फिसल नहीं सकता, वो मेरे साथ बैठेगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, मस्ती मारेगा ना। बट जिसको लगता है कि मैं फिसल सकता हूँ, उनको लगता है नहीं अच्छी चीज़, ये दूर रहें, ये लोग, इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि मैं फिसल जाऊँगा भैया, है ना। मैं कितने भी मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। उन्हें हेलमेट पहनते हैं। जेंडर इज़ नॉट बिटवीन ऑफ 2 legs, जेंडर in between of 2 ears, gender in always here। 2 ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਂਡਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, है ना। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सुख दुख पेन सब, और ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। सारे शरीर च नहीं तो हेलमेट पा लेंगे पा, ऊपर तो नीचे हेलमेट ही हेलमेट पा ले। क्योंकि अगर हमारा हाथ भी कट जाए, पैर कट जाए, हम जिंदा रहेंगे, है ना। हमारे अंगूठा कट जाए, तो नाक कट जाए, आँख भी फूट जाए और कान कट जाए, फिर भी हम जिंदा रहेंगे। हमारी किडनी भी एक ख़राब हो जाए तब भी जिंदा रहेंगे। बहुत सारे अंग जो हैं ख़राब हो जाए तब भी हम जीवित हैं। लेकिन ब्रेन, अगर दिमाग को नुकसान पड़ गया, मेमोरी तो वही है, अगर वो उसको नुकसान हो गया तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हेलमेट पहनते हैं। और ये जब हम जानकारी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ WhatsApp ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਫालतू। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੇਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ थर्ड जेंडर ਜਿਹੜਾ ਹੈ रिकॉग्नाइजेशन हुई है, क्योंकि उन्होंने पता थी हज़ारों सालों से हमारे बीच में ट्रांसजेंडर है, होमोसेक्सुअलिटी। और दूसरी बात,
377 ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 377 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ IPC 377 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 2013 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2009 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ। 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉसी ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 'ਚ ਹੈ ਨਾ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1860 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1871 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟਰਾਈਬਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈਬਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। सेम अंग्रेज ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ लोग सोच रहे हैं ये बंदे होंगे या औरतें बन जाए, कोई आदमी औरत नहीं बनता है ना। कोई साड़ी पहन के दिखा दो, आपको मैं कहूँगी कि आप एक दिन साड़ी पहन के सारे सड़क पे घूमना, आपको लोग कितना, आप खुद ही नहीं पहनोगे। शाम को कहोगे ना भी मैं नहीं पहनता हूँ, इतना बदतमीज़ी, इतना लोग मेरे को हंस रहे हैं। लेकिन हम लोग भी तो है ना, हम लोग अपने दिमाग से मजबूर हैं। और ये डिसऑर्डर नहीं है, इट्स नॉट डिसऑर्डर, इट्स नॉट डिजीज़। बहुत सारे डॉक्टरों के मैंने ये पॉडकास्ट, बड़े सो कॉल्ड डॉक्टर, फेक डॉक्टर्स ਜਿਹੜੇ यूट्यूब पे बैठे ये पॉडकास्ट कर रहे थे, दे आर फेक डॉक्टर, कहते ये डिजीज़ है, इन्हों ठीक कर दें। दुनिया की ऐसे कोई ताकत नहीं है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, दुनिया की कोई ऐसा ताकत नहीं है जो इसको ठीक करे, क्योंकि ये कुदरती है। हाँ, कुदरत को नहीं बदल सकते, इसलिए कुदरत। फिर आप किसी इंसान को, मरते इंसान को ज़िंदा रखो 500 साल, अगर आपके अंदर इतना ही हुनर है तो आप फिर इतने लोग पागल जो मेंटली है अपसेट, उनको ठीक करो, हमारे को क्यों ठीक कर रहे हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, ये रियल स्टोरी है। एक बच्चा और उसको पेरेंट्स आए मेरे पास कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो, ये आपकी तरह ही रिएक्ट करा, जनानी अपने आप को कहता अपने जनानी मानता, इन्हों मुंडा बना दो। मैं कहा मेरे को कोई मेडिसिन इदां दी नहीं हैगी। मैं उन्होंने डॉक्टर PGI ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਮੰਨਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾरों अंग ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। तुम्हें हवा दिखाई देती है, तुम्हें ये पूरा ब्रह्मांड तो नहीं जान सकते। आप तो अपनी धरती, अपने घर के बारे में नहीं पता कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही, मेरा पति कहाँ जा रहा, आपके रिश्तेदार कहाँ जा रहे, आपके बच्चे कहाँ जा रहे। आप पूरे ब्रह्मांड को कैसे जानोगे? आप यूट्यूब पे बैठे मेरे को कैसे जान पाओगे कि ये लोग गलत हैं, है ना। आप अपने बारे में नहीं जानते हो, आपकी उंगलियों के जड़े 10 उंगलियाँ हैं, फिंगरप्रिंट्स भी अलग ने, है ना। आप मोबाइल खोलते हो तो एक ही फिंगरप्रिंट्स लगता है ना उसमें, सारी उंगलियाँ तो नहीं छाप देते उसमें, है ना। जब आपका शरीर अलग है, एक एक चीज़ अलग है, तो आप कैसे सोच सकते हो दूसरा भी मेरे जैसा हो जाए। पीपल से यू आर डिफरेंट, आई से यू आर सेम, है ना। मैं डिफरेंट नेवर रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। जो अलग होता है वही दुनिया को बदलता है। उसने सहा होता है, उसने बहुत सारे दुख देखे हैं, तरह तरह। सांप अपनी केंचुली बदलता है, सांप जदों सॉरी जब सांप ना अपनी केंचुली बदलता है ना, उस समय वल्नरेबल होता है। ऐसे ही एक इंसान है, जब वो मेल होता है लेकिन अपने आप को फीमेल मानता है, और जब वो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है तो वो उस समय बहुत वल्नरेबल होता है ना। अब मेरा ट्रांजिशन वाला, ना मैं पहले वाली इंसान हूँ, ना मेरा ट्रांजिशन है, मेरा हो चुका जो कुछ होना है ना। अब रिवर्सिबल नहीं है वो। मैं औरत थी, मैं औरत बन गई हूँ। आप लोग सारे बचपन से ये सोचते हैं डॉक्टर बनना, आपने यूट्यूबर बनना था, आपने नाटक करने थे, आपने ड्रामा करने थे, आपने थिएटर करना था। मैंने हमेशा सोचा मैं औरत बनूँगी, मैं डॉक्टर वॉक्टर नहीं कुछ बनना,
मुझे तो औरत बनना था और मैं बन गई, और मुझे प्राउड है, भगवान मुझे हर जन्म में हिजड़ा बनाया, ठीक है ना। मैं थैंक गॉड मुझे आदमी नहीं बनाया, मुझे आदमी नहीं बनाया जो इतने ऐसे आदमी नहीं बनाए जो रेप कर रहे हैं, जो चोरी चपाटियाँ कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, है ना, देशद्रोही हैं, जो दुनिया में जैसे कश्मीर में आतंकवादियों ने इतने निहत्थे लोगों को मार दिया, ऐसे लोगों, थैंक गॉड मैं हिजड़ा हूँ। हम किसी को नहीं मार सकते हैं, हम तो प्यार बांटने वाले लोग हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो सांप हैं, जो जब वो केंचुली बदलता है ना, उस समय वो वल्नरेबल होता है। उस समय उसको गिद्ध, चील जो भी खाएगा, बिल्ली भी आके उसको वो अटैक नहीं कर पाएगा। उस समय वो कोशिश करता है मारने की, लेकिन उसकी जो स्किन होती है बहुत वल्नरेबल, बहुत नाजुक होती है। इसी तरह एक ट्रांसजेंडर है जो जब उसका ट्रांजिशन होता है वो भी बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको आप लोगों का प्यार चाहिए। वो आपसे कुछ नहीं छीन रहा है, आपके बच्चों को नहीं बिगाड़ रहा, आपकी ज़िंदगी नहीं। हम अपनी, मेरे पिताजी की, मेरे फैमिली में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, हमने वो लात मार के निकल गए, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना था, मैं कौन हूँ। मैं, यही तो वेद भी बताते ना, कौन हो तुम, क्यों आए इस दुनिया में, है ना, किस लिए आए। मैं एक औरत थी और फिर मैंने दुनिया को जाना उस नज़र से, है ना। आप औरतों के दुख कैसे जान सकते जब आप औरत बने ही नहीं हो, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे दूसरे ज्ञान जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। और भारतीय दर्शन शास्त्र, वेस्टर्न जो फिलॉसफी, उसमें और हमारी फिलॉसफी यही फ़र्क है। मैंने पहले भी कहा उनकी फ़िलॉसफी इस जगत के बारे में बात करती है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी इस जगत के बारे में बात करती है और उस जगत के बारे में। सो दोनों, इसलिए यहाँ का हमारा तो पूरा भारत अथाह ब्रह्मांड जो पूरा सागर की तरह ज्ञान है ना, ज्ञान ही ज्ञान है। हर एक धर्म में इतना सारा ज्ञान है। जो हमारे इंडिया में जिन धर्मों का जन्म हो, पंजाब की जी धरती है, इतनी जिन्नी एक्सैप्टेंस बाबिया नूं है, खुसरिया नूं है, उन्हें कि दूसरी जगह नहीं हैगी, है ना। तो हुण क्यों फिर गालां कढ़दे हैं। मैं बस ये कहूँगी वो भी अपनी जगह कुछ जगह ठीक ने ਜਿਹੜੇ गालां कढ़दे होने, क्योंकि कुछ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ समझ नहीं शायद लगी होगी, या वो अपनी कहते ना कि एक गाना है मुगल आज़म में, जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। तो हम लोग तो शोला हैं, जितना आप हवा मारोगे ना, जितना लात मारोगे, हम उतना और भड़केंगे, है ना। वो भगवान का चटक रूप है हमारे अंदर। हम तो वो प्रकृति हैं, तीसरी प्रकृति, कि जिस दिन ख़त्म होगी तब भी हम ख़त्म नहीं हो पाए। हम तीसरी प्रकृति के लोग हैं। इस धरती के लोग तो होंगे मर्द औरत। हमने औरतों की जान बचाई, हमने हरम के रखवाले रहे। जब मर्द अत्याचार करते, हिजड़ा सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि मर्द की ताकत भी उसके अंदर है ना। हमने, मेरे पास एक लॉकडाउन का केस आया था, एक औरत के साथ, एक कश्मीरी लड़की के साथ बड़ा बुरा हुआ था। उसके साथ संबंध बनाए थे किसी अफ़गानिस्तान के लड़के ने। बेचारी 7-8 महीने तक लॉकडाउन में बंद रही घर में। वो प्रेग्नेंट हो गई थी और बच्चा पेट में था। किसी ने मदद नहीं करी, कुछ नहीं, डॉक्टरों ने मदद नहीं, किसी हॉस्पिटल ने मदद नहीं की। तो उसने फिर, उसको पता था कि हिजड़ा लोग जो है ना, किन्नर लोग, वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। उसने सर्च मारा होगा शायद मैं खुश नसीब हूँ या बदनसीब हूँ, क्या थी क्या नहीं। अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने मेरी ड्यूटी लगा रखी थी। मेरा आईडी सामने आ गई इंस्टाग्राम। उसने लगातार मैसेज इतनी पूरी स्टोरी बता दी, क्या क्या उसके साथ हुआ। कहती मैं 8 महीने से घर रूम से बाहर नहीं निकली हूँ। उन्हें सारी स्टोरी बताई। वो लड़का छोड़ के भाग गया और मैं प्रेग्नेंट हुई, कमरे में बंद। तो अब मैं बच्चा जन्म दूंगी, लेकिन मैं बच्चा घर नहीं ले जा सकती। मैं तो यहाँ पढ़ने आई थी। तो मैं बड़ी मुसीबत में, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे। फिर मैं रात भर सोचती रही कैसे इसको। मैंने प्लान किया भी चंडीगढ़ में डिलीवरी करवाऊँगी, जो मर्जी, दुनिया की ताकत नहीं, ह्यूमन राइट्स है हमारा।
उस बच्चे का ह्यूमन राइट्स है, उस औरत का भी ह्यूमन राइट्स है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस बच्चे को बाहर आने के लिए, कोई दुनिया, भारत का कानून चाहे इंटरनेशनल लॉ है, उस बच्चे को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर कौन होते रोकने वाले, है ना? तो डॉक्टर को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी। मैंने चंडीगढ़ बुला लिया और दूसरे दिन वो आई और मैंने फिर उस 2-3 दिन पहले उसको बोला कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरा वाले मैसेज भेज दे सारे। मैं कहा तू जहाँ भी तेरे खड्डे से बाहर निकाल के अफ़गानिस्तान से लाऊंगी, मैं एम्बेसी में जा रही हूँ और तेरी डिग्री कैंसिल करवाऊंगी हम, तू आजा फटाफट जहाँ भी तू है। उसने मैसेज उसको कर दी तो वो तुरंत दूसरे तीसरे दिन आ गया था वापस, उसी के साथ खड़ा रहा। वो फिर आया एक हॉस्पिटल मेरे पास आते आते रास्ते में, वो मैं जगह का नाम नहीं बताऊँ क्योंकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। रास्ते में एक हॉस्पिटल था जहाँ पर वो रात को 4-5 बजे, सुबह 4-5 बजे डिलीवरी होगी। मैं सुबह 9-10 बजे मुझे पता लगा, जब मैंने फ़ोन ऑन किया तब मैं गई। उस बच्चे को मैंने अपनी गोद में लिया और उस बच्चे को किसी को मतलब प्रोसेस, पूरा गवर्नमेंट का जो प्रोसेस था उसके प्रोसेस के थ्रू वो गोद लिया गया। तो ये सारी चीज़ें, हम लोग ऐसे भी लोग हैं कि हम किसी की, जब दुनिया में कोई मदद नहीं करता वो हमारे पास आते हैं। गरीब से गरीब बच्चियां जो शादी वाली होती हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, या उनकी हम मदद करते हैं, शादियां करवाते हैं। हम लोग ऐसे जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पर कोई मदद नहीं करता, वहाँ हम खड़े। तभी तो मैंने कहा तीसरी प्रकृति के लोग हैं, तीसरी, थर्ड नेचर। जब कोई नहीं होता तो हम साथ में हैं दुनिया में। और हमें तो, हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान अगर लड़ रहा है तो हिजड़ों को क्यों नहीं भेज रहे हैं, हिजड़ों को भेजें हम, है ना? हमारे तो ना आगे ना पीछे, हम लड़ेंगे। हमारे बच्चे वाले, जिनके बच्चे हैं वो जिए बेचारे, उनके परिवार आगे बढ़े हैं ना। हम तो ये दुआ करते हैं, भारत हमारा हमेशा महान है, रहेगा भी, है ना? यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो अपने हिंदू लोग भाई बहन हों, कोई भी हो, सब लोग मिलजुल के हम यहाँ रहते हैं। थोड़ी बहुत हो जाती हैं आपस में मतभेद, घर में भी होती हैं, है ना? एक परिवार में भी मतभेद होते हैं, तो ये होता रहता है, चलो। बट यही हमारी स्टोरी है। और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में तो बहुत सारी हिचकोले आए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पढ़ाई छूट गई, फिर 22-23 साल वेट करना पड़ा पढ़ाई के लिए, 2016 तक आते आते बहुत सारी चीज़ें हैं। सुसाइडल अटैम्प्ट भी किए हम लोगों ने, लेकिन शायद परमात्मा ने इसीलिए बचा के रखा है कि हम लोग कुछ अलग करेंगे दुनिया में ना, है ना? मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी है, एडमिटेड, तो 2 घंटे की है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। फिर जस्टिन ट्रूडो 2018 में इंडिया आए थे, उन्होंने डिनर पे भी मेरे को बुलाया था दिल्ली में, और कनाडा के लिए ऑफ़र भी किया था कि आप सिटीजनशिप ले लो। मैं कहा नहीं, मैं इंडिया में रहूँगी, है ना? इंडिया में हम क्यों छोड़ें भाई, हम तो इंडिया, भारत के लोग हैं, रूखे सूखे अपने लोगों के साथ रहेंगे ना। हमें यहीं बदलना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, अपने जजमानों को, अपने बच्चों वालों के साथ रहेंगे हम लोग, क्यों छोड़ के जाएं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने पूरी दुनिया में भी घूमी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ, और मैं अपने पैसे से नहीं घूमी है, मैं उन्हीं देशों ने बुलाया मुझे, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड है, उन लोगों ने अपने वहाँ पर सेमिनार वर्कशॉप होती हैं, जो मीटिंग्स, उन लोगों ने बुलाया है। थाईलैंड में भी तो मैं गई, अदरवाइज़ मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो ये चीज़ है, देखो, हर एक बच्चा था, जब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो उन्होंने ये न्यूज़ सारे मीडिया में फैली, तो एक जो पर्सन था पंजाब से ही था, उसका कई बारी वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, 3-4 बार ऐसे कुछ, तो बहुत डिप्रेशन में चले गया था। उसने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा और मेरे को, फिर उसने इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो मेरे को मैसेज करने शुरू किए और मेरे पास मिलने के लिए उसने टाइम मांगा। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उस समय। आया वो, तो मेरे पास उसका भाई या पिताजी, उसके भाई आया शायद, और मेरे को रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे मेरा वीज़ा लगवा दो। मेरे तो इतने बारी, मेरे तो बहुत बदनामी हो गई गाँव में, सारे टुच्चे पच्चे सब चले गए, मैं रह गया हूँ। तो मैंने कहा मैं कैसे भिजवा दूँ तुम्हें, है ना? मैं तो कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं का एम्बेसडर हूँ, है ना? आप एम्बेसी में लगाओ, अपनी फ़ाइल पक्की करो, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट लगाओ तो आपको मिल जाए। उसने पैसे इतने बैग में भरे, 20 लाख रुपए, वो मेरे को दिखाने लगा कि आप ले लो और मेरा वीज़ा। मैं कहा भैया मैं नहीं, ये सब प्रपंच में पढ़ती हैं। तो देखो, हम लोग ये भी ऐसे भी ईमानदारी रहती कि हम वो पैसे भी नहीं रखे हैं। हम आपसे ज़रूर मांगते हैं, किसी के बच्चा होने पे, शादी होने पे, वो ज़बरदस्ती, आप कहोगे नहीं ज़बरदस्ती लेते हैं, वो मैंने कहा था ना, प्रेम की लड़ाई है ना?
हम अपने भगवान से लड़ते हैं, अपने जजमान से लड़ेंगे। दो मुझे, आपके बच्चे हैं ना, हम बच्चे हैं तो अभी तो लड़ रहे हैं। अब दुनिया में इतनी बारी तकलीफ़ें हमने सही हैं तो फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो रहती है, मेंटली थोड़ा अपसेट रहता है बच्चे। जब आप किसी बच्चे को बोला छक्का 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 है ना, तू गंदा है, तू ये है, तू वो है, वो बच्चा फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ संवारी हैं, है ना। और आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के मैं बाशिंदा हूँ। और मैं उनके कारण हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरे कारण भी नाम हुआ है, चंडीगढ़ का मेरे कारण भी नाम हुआ कि एक कोई ट्रांसजेंडर या किन्नर थी, तो जिसके कारण यूनिवर्सिटी का भी नाम हुआ। पूरी दुनिया में वो डॉक्यूमेंट्री देखी गई जब वो राष्ट्रपति भवन में मेरा पोस्टर आगे वो दिखा रहे थे ना, रील चल रही थी, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा। हालांकि मैं नहीं जा पाई, जो डायरेक्टर था वही गया, पर मुझे गर्व हो रहा था कि वो मेरा नाम ले रहे थे वहाँ पर ना, राष्ट्रपति भवन में। तो खुशी होती कि देखो जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पाई, तो हम दुनिया से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ें। हाँ, वो कुछ कदम आप चलें, कुछ हम चलें, इन नफ़रतों को हटाओ, है ना। उन नफ़रतों के कारण ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी हैं, जिसके कारण ये आगे हम लोग प्रेम जो मोहब्बत है ये नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे भाई बहन जितने हमारे हैं, मैं उनसे भी नफ़रत नहीं कर, जो गलत भी बोल रहे हैं तो चलो ठीक है, परमात्मा कहते भला करे, हो ना, राजी रहन सारे मेरे वीर ना, जेड़े गालां भी कढ़दे हो राजी रहन वो भी, क्योंकि जिन्ने पत्थर मारूंगे मैं उन पत्थरों का घर बना लूँगी। सावित्री बाई फुले के ऊपर पत्थर कीचड़ मारे गए, तो उन्हीं के कारण, सावित्री बाई फुले के कारण आज सारी औरतें पढ़ रही हैं ना, फीमेल्स पढ़ती हैं। अगर वो ना होती, अगर वो पत्थर ना खा रही होती, कीचड़ ना सह रही होती, तो आज लोग पढ़ते ना, फीमेल घर में रहती रोटी बना रही होती है ना। तो ये सारी चीज़ें, बदलाव जो है ना, जब बदलाव आता है बहुत उथल पुथल होती हैं। मैं अपने LGBT या किन्नर ट्रांसजेंडर भाई बहनों को कहूँगी कि आप विचलित मत हो, दुनिया में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ है। ट्रंप ने अगर बैन कर दिया तो क्या हुआ, हम अपने भारत में रहेंगे ना, भारत में तो कोई बैन करने वाला नहीं है। मेरे पास में टी लिखा हुआ, जब मैं यूरोप की, आप सोचियो हम भारत को यहाँ से देख रहे वेस्टर्न, या इतनी लग्जरियस लाइफ है, ये है वो लग्जरियस तक ही सीमित हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते वो लोग, है ना। उन्हों दी हर फिलोसफी उन्हों दी लिखा है कि तीसरा जेंडर नहीं होता, बट इंडिया 'ਚ ਤਾਂ सब कुछ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ना। ਅਸੀਂ ने ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ हैं, साढ़े कल्चर इदां ਦਾ है। सो मेरे पासपोर्ट टी लिखा, जो मैं यूरोपियन कंट्री गई तो हमेशा बार बार जिथे भी जाऊँ एयरपोर्ट 'ਚ मैंने पूछे टी की है ना। सो एक्सप्लेन करना पैंदा कि इट्स थर्ड स्टैंड फॉर थर्ड जेंडर ना, टी स्टैंड फॉर थर्ड जेंडर। तो थर्ड जेंडर पूछे कौन है की है, सुप्रीम कोर्ट की मैं जजमेंट नाल ही रखी सी, है ना। तो क्योंकि मैं 2019 च गई जो पार्लीमेंट का बिल शायद पास नहीं होया सीगा, मेरे को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मैं नाल रखी। चलो वैसटर्न कंट्री का छोड़ो, लेकिन इंडिया जो वापस आए इत्थे भी जो कंप्यूटर 'ਚ देखने लगे तो मेल फीमेल ही सीगा। 15-20 मिनट खड़ी रही मैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मैं कहा यार मैं इंडिया 'ਚ रह रही हाँ, है ना, जिहड़ा मैनू ये पासपोर्ट मैंने कहा ये पासपोर्ट किसने दिया, मेरे भारत सरकार ने, और ये एयरपोर्ट भी भारत सरकार का है, तो या तो ये गलत है या वो गलत है ना। फिर बाद में उनको सारा समझाने के बाद तब उन्होंने कहा कि फ़ीमेल में डाल दो, है ना। तो फीमेल में क्यों डाल दें जब अलग जेंडर है, थर्ड जेंडर तो आइडेंटिटी है। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी है दुनिया में। जब तक आप नहीं जानोगे पहचानोगे थर्ड जेंडर कौन है, खुसरा कौन है, हिजड़ा कौन है। हिजड़ा हिजर से बना है। हिजर मतलब सेपरेट होना, अबेंडन, घर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। जैसे मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना चले गए थे, उनको थ्रेट मिला, है ना, तो मक्का छोड़ के कहाँ चले गए, मदीना चले गए। उनको थ्रेट मिल रहे थे तो वो छोड़ के, वो हिजर, उसको वो हिजर कहते हैं, बिछड़ना, बिछोड़ा। सो वो वाला जो शब्द है वो हमसे जुड़ गया। हम भी हिजर करते हैं, अपने परिवारों को छोड़ते हैं, अपने प्रॉपर्टियाँ, अपने भाई बहन ये सब छोड़ के दूसरे स्थान पे या दूसरे जगह चले जाते हैं। तो हिजर का वो कहता है उसको। फिर धीरे धीरे ये शब्द जो है हिजड़ा बनता गया, और ये हमारी कम्युनिटी से जुड़ गया हिजड़ा। हिजड़ा इज़ नॉट पर्सन, हिजड़ा एक कल्चर है ना। हिजड़ा कोई इंसान है, उसमें जो भी ट्रांसजेंडर वुमेन जाती हैं उसके अंदर वो हिजड़ा हो जाती हैं। हिजड़ा मतलब हिजर करके आई हैं ना, छोड़ के आई हैं सब कुछ।
और उस नई परंपरा में शामिल हुई हैं। किन्नर जो है संस्कृत शब्द है किम, पुरुष, किम मतलब अलग तरह का पुरुष या अलग तरह का नारी, है ना। ट्रांस मेल, ट्रांस फीमेल, ये शुरू से ही है। शिखंडी कोई हमारे जैसे साड़ी नहीं पहनते थे, शिखंडी पुरुष थे, किन्नर पुरुष, है ना। वो पैदा तो वो फीमेल हुए थे, लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई मेल करते थे। तो इसलिए भीष्म पितामह जब उनके सामने खड़े रहे और महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ये लीला उनकी थी, उन्होंने बीच में शिखंडी को खड़ा कर दिया, अर्जुन का सारथी बना दिया। आप अलग हो गए, खड़े हो गए। तो भीष्म जब जैसे ही अपना धनुष उठाने लगा तो उसने देखा कि शिखंडी खड़े हैं, तो शिखंडी को देख के उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध नीति में स्त्री पे बाण नहीं चलाया जाता। हालांकि वो स्त्री मानता था, क्योंकि उसको पता है ना बचपन में से ये स्त्री थी। तो अब जैसे ही उन्होंने अपना धनुष नीचे रखा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि अब तुम्हारे मौका है। उन्होंने तुरंत फिर तीर चलाने शुरू किया और भीष्म पिता नीचे गिर गए, ठीक है। बट वो भीष्म जो शिखंडी थे वो थे कौन? शिखंडी जो थे वो अम्बा थी, है ना। 3 बहनें थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, जिसको भीष्म पितामह बहुत पहले उनको किडनैपिंग कर ले या फिर उनको अपहरण करके अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए लेके आते हैं कि 3 रानियां उसकी होंगी। खुद के लिए नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उनको भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी मैं हमेशा कुंवारा रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा। अपने लिए तो नहीं लाए थे, वो अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए लेके आए थे। तो विचित्र वीर्य ने 2 बहनों को एक्सेप्ट कर लिया, अंबालिका और अंबिका को। अम्बा को नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज थी किसी के साथ, तो उसको वापस भेज दिया। तो उसका जो फियांसा थे, जो उसके मंगेतर थे, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कि उसने कहा कि तुम तो वहाँ रही हो, है ना। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो बेचारी ना इधर की ना उधर की। फिर भीष्म के पास आई तो उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता शादी। तो उसको बहुत क्रोध आता है और वो अग्नि में कूद जाती हैं। तो उसका दोबारा जन्म फीमेल का होता है, दोबारा से अम्बा, फिर से शिखंडी। वो ध्रुपद के घर में आता है। ध्रुपद की बेटी थी द्रौपदी, और द्रौपदी का भाई शिखंडी। दोनों एक जैसे पावरफुल वाले। द्रौपदी भी उतनी पावरफुल थी, वो बहुत मतलब ब्रेव लेडी जिसको कहते हैं ना, उसने इतना कुछ सहा है। पांडवों जो महाभारत जो हुआ है वो द्रौपदी के कारण नहीं हुआ, वैसे तो उनकी बहुत सारी करतूतें थी। लास्ट में जो बंब जड़ा ना, जड़ा जिस तरह कहते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, सर्बिया ਦਾ राजकुमार ਜਦੋਂ गोली लगी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस तरह कोई लास्ट कोई चीज़ होती है ना जिससे वो फटता है, फिर ऐसे ही द्रौपदी के साथ हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें शुरू की। इसी तरह शिखंडी का है, शिखंडी ना होते तो महाभारत भी ना ख़त्म होता। शिखंडी के कारण ही वो महाभारत जीते हैं। तो ये सारी हमारे जो इतिहास हैं, इसको अंग्रेज़ों ने मिथ कहा है, ये मिथ नहीं है। माइथोलॉजी अंग्रेज़ों ने कहा, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को दबा दिया। और आप जितने भी हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें किन्नरों का, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल नहीं लिखा हो, क्योंकि मोस्टली तो अंग्रेज़ों ने लिखी हुई है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने आदमी औरत लिखा। हर जगह मेल फीमेल। साढ़े पंजाब च कहते बंदा बन जाओ, बंदा बन जाओ। सानू भी सारे माँ बाप ने, साढ़े माँ बाप ने कहा बंदा बन जाओ। बंदा किवें बन जाइए? तुसी बंदी नूं बंदा किवें बना दे? कोई सारे बंदा बनाना चाहते, कोई बंदी नहीं बनाना चाहता कि औरत भी। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। हमें वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। सानू सिर्फ स्वीकार्यता चाहिए, और अगर सारी दुनिया एक्सेप्ट कर ले फिर कोई फसाद ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। सारे भावें इधर दे लोग होण भावें इधर दे लोग हैं, सारे मसले पॉलिटिकल ने अपने आप नूं यूट्यूबर्स फॉलोअर्स बढ़ाने वास्ते जिन्ना मर्जी कंट्रोवर्सीअल पा देन। हालांकि उन्होंने भी पता होगा कंट्रोवर्सी पैदा करो तो फॉलोअर्स बढ़ाओ, है ना। ये सारा मुद्दा है, पैसे कमाओ। हर एक आपके पैसे कमाने के चक्कर किसी की दूसरे की ज़िंदगी भी ख़राब हो रही, सुसाइड हो रहे हैं, लोग सुसाइड करने को तैयार हैं। इतने सारे गंदे गंदे चीज़ें यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो मैं ऑलवेज़ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ऐसे कंटेंट्स मत डालो जब तक आपको समझ नहीं है, जब तक आपको कोई बात का पता नहीं है, तो उसको बतंगड़ ना बनाओ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट यही कहूँगी, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे।